effort of explaining prophetic intelligence by a course named Emotional Intelligence. This is going to be a 6 to 8 weeks course, presumably, अगर ये आगे नहीं खींचा तो. Estimated time हमारा 6 to 8 weeks है इस course के लिए, Emotional Intelligence पर. And the course will cover deep study of terminology used in psychology and related studies pertaining to Muslims. I find this study very relevant nowadays because upcoming we have a huge track on psychology, and that is all experimental psychology. So काफी relevant है ये course इस वक्त. Now we intend to keep it limited to emotional intelligence related content only. We'll be touching upon a lot of things during the course. आप चाहें तो वापस जाकर के you will have a week's time between two sessions. तो आप जाकर के वापस और अपनी detailed study कर सकते हैं, but we'll be limiting ourselves to emotional intelligence related content only. For those of you who are involved in this course series, let me tell you, the previous session, which concluded, was on leadership. We have had a series of sessions. We have actually designed a small course content, और दो last sessions थे वो leadership पे थे, Prophet al-Islam as the central figure. और यहाँ पर we are going to study the emotional intelligence in human course with Prophet al-Islam as the pivotal figure. यहाँ से बाहर जाकर when you all become ambassadors of this knowledge, please carry forward the message that Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam conveyed to us, and do propagate that he is the most intelligent human who ever walked this earth. And inshallah, umeed hai Allah se ki you will have enough tools to prove that. Okay, the session will include the session हमारे जो होंगे, they will include psychological approach, philosophical approach, neurochemistry. Neurochemistry में हम hormones की neurochemistry basically study करेंगे और brain का hardware study करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि हमारी अपनी मशीन जो हमारी बेसिक टूल है, जिसके थ्रू अब हम इस पूरे बहुत बड़ी रिल्म को डिस्कवर करने जा रहे हैं, वो किस तरह से काम करती है. Then we will have subsequent sessions neurochemistry पे और hormones पे. I am expecting we'll have at least 2 sessions. Now that depends on what level of interactions we have. Then subsequent sessions will be on the tools and techniques of mastering emotional intelligence. ये ज़्यादातर करके जो इस वक्त की जो renowned theories हैं, जो already experimentally proved हैं या जिन पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, ये उन theories के around ही revolve करेंगे ये tools. वहीं से derive किए गए होंगे. बहुत popular studies, experimental studies, surveys के ऊपर based होंगे, उनकी inventories पर based होंगे, तो ये आपसे share किए जाएंगे, ताकि आप न सिर्फ हार्डवेयर को समझें, सॉफ्टवेयर को समझें, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है खुद पर और अपने लोगों की ज़िंदगी में, वो अच्छी तरह से आप यहाँ से सीख करके जा सकें. और एक चीज़, we cannot have productive learning unless I have input from all the participants present over here. Mashallah, I see a good presence over here, but I will expect you guys to hold on. This course requires a lot of patience, let me tell you. बहुत patience की ज़रूरत होगी. मैं बहुत तेज़ी से अगर कोई चीज़ लेके जाऊंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप उसकी लिंक्स नहीं पकड़ पाएंगे. दूसरी चीज़, I myself have done this course with my teacher over a period of almost 2 years. So अब आप सोच सकते हैं, I have a humongous task to convey a huge amount of knowledge in a very systematic manner, and that in such short period. So इसीलिए इसको लेक्चर मेथड ना बना करके अगर हम इंटरैक्टिव रखेंगे
तो वो बेहतर रहेगा। उससे आपकी कितनी समझ आ रही है या फिर आपको किन टॉपिक्स में मसाइल आ रहे हैं वो हमें क्लियर हो जाएगा। नाउ दैट विल नॉट बी अ टॉकेटिव सेशन, किसी डिस्कोर्स की तरह नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ क्लास काइंड ऑफ अ थिंग। तो आई विल बी कवरिंग सर्टेन टॉपिक्स एंड देन थ्रो द ओपन फोरम ओपन, ताकि आप अपने सवालात रख सकें। एंड व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़, अगर आप वाकई सिंसियर हैं इस कोर्स के लिए, वाकई सीखना चाह रहे हैं, then what is recommended is please do your study. Let me tell you, बड़े बड़े दाना और बड़े बड़े टीचर्स इस इल्म के, उनका कहना ये है, उनका मानना ये है कि ये एक ऐसा साइंस है जिसमें अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप आके वापस जाकर के रिसर्च नहीं कर रहे हैं या टॉपिक्स को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अपने आप से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कितनी भी मेहनत यहाँ आपको समझ नहीं आएगी। एंड दिस आई एम टेलिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई पर्सनली हैड one of the most blessed and greatest teachers. I don't want to make this forum as a publicity platform. उनकी तरफ से मुझे इल्म मिला तो मुझे लगा कि मुझे आगे बांटना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए इस सेशन को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई स्टिल एम अ स्टूडेंट, so what I would share with you is please go back and research, please study. Trust me, if you study you will see humongous changes in yourself. आप बहुत बड़े बड़े changes अपने अंदर देखेंगे। ओके, और वो लास्ट चीज़ एक, we will be very disciplined with the timings. आज क्योंकि फर्स्ट सेशन है and a lot of people had invitation, बहुत सारे लोग शायद इस फोरम से वाकिफ भी नहीं हैं। We will be starting our sessions sharp at 9:30 and we'll be ending them by 10:30. हो सकता है कि मेरा जो कंटेंट प्रिपेयर्ड है फॉर द सेट सेशन वो इस 1 घंटे के वक्फे में ना कवर हो पाए। आई डोंट माइंड टू कैरी इट ओवर, बट डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो we'll honor all our times and efforts. Jazakumullah khair for having joined me and trusting me. Let's formally begin this session. This this particular session, आज का, as the title slide says, philosophy of emotional intelligence in the world and the Islamic perspective. It's basically our effort to understand human software, जिसको आपने माइंड इस अल्फाज के फॉर्म में सुना होगा या साइकी के अल्फाज में सुना होगा। Now, I have a question to you. You guys can open your mic. जब मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब मैं आपको परमिट करूँ तो प्लीज अपनी माइक्स खोलिए और बात कीजिएगा मुझसे। You can raise your hands, तो हम आपके लिए सेशन, हम आपके लिए माइक खोल सकते हैं। आसमा सिस्टर, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मॉडरेट दिस फॉर मी। अच्छा, एक चीज मेरा सवाल बिफोर आई ओपन द सेशन, लेट प्लीज टेल मी कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे इस वक्त बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी आपके पास यूट्यूब की वीडियोस हैं, एआई के वर्जन्स हैं, चैट जीपीटी में बड़े आसानी से इसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मतलब कोई बहुत ही ना समझी जाने वाली बात हो, कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ हो। तो आप में से कोई 2 या 3 लोग मुझे ये बताएं, इस सेशन में आने की आपकी क्या वजह है? आप क्या चीज़ आपको यहाँ लेके आती है, या क्या क्या आप क्या सोच के यहाँ आए? एनी 2 पीपल? वहां तो बहुत क्विक सर्विस भी मिल जाती है, यहाँ तो मैं तो आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रही हूँ। तो एनी 2 ऑफ यू, either write your answers or raise your hands. जी। To learn, Irfan says to learn. To learn what, Irfan? अच्छा हैदर भाई, आई जस्ट सॉ योर मैसेज उर्दू ओनली, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, तो आप आराम से वहां से समझ सकते थे, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जी, गजाला says emotional intelligence is essential for us to adjust in our environment. बस इतना ही? चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज्वाइन किया था।
As I said, last session was on leadership. और यहाँ आपकी स्क्रीन पर सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 73 है. मुबारक भाई, कैन यू प्लीज रीड इट आउट फॉर मी? मुझे ना ये बारीक रीडिंग का थोड़ा मसला है. जी, कोई भी पढ़ दे. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मा यहदूना बिअमरिना वअवहयना इलैहिम फ़िअला खैराति व इक़ामस सलाति व इताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन. अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ इसका ट्रांसलेशन देखेंगे. We made them leaders, guiding by our command, and we inspired to them the doing of good deeds, establishment of prayer, and giving of zakah, and they were worshippers of us. As I said कि last session was on leadership. तो यहाँ आप देखें, we are still in the same trail, we are following the same footsteps कि leadership कितनी important चीज़ है कि अल्लाह ताला हमें कमांड कर रहे हैं कि आपने leadership पकड़नी है. सबसे पहले पहली लाइन में वो अल्लाह ताला हमें हिदायत फरमा रहे हैं कि हमने उन्हें लीडर बनाया अपने हुक्म से, और उसके बाद हमें मुसलमान होने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं और उनको इंस्पायर किया, यानी हमें उम्मा को इंस्पायर किया ताकि वो नेक काम करें, इकामत सलाह करें, ज़कात अदा करें और दीगर इबादत के अरकान अदा करें. बट द फर्स्ट थिंग ही वांट्स आउट ऑफ अस इज लीडरशिप. लीडरशिप के लिए आए हैं हम, और लीडरशिप ही प्राइम मोटिव है. क्यों? क्योंकि जब आप लीडरशिप प्रैक्टिस करते हैं तब ही आप अल्लाह का दीन प्रीच कर सकते हैं, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं. इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला इज putting such a great emphasis on leadership himself. He's hinting at it. And why so? क्योंकि Islam is the only deen where an individual has been given such great level of importance. आप देखें कि अल्लाह ताला वांट्स, इतने सारे इंसान हैं. अब आप सोचें कि हर इंसान जो मुसलमान है, वी आर क्वाइट अ नंबर ऑन प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, अगर हर बंदा अपनी लीडरशिप की पोजीशन में है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ अ सिस्टम. अगर सिस्टम इस्टेब्लिश करने पर ये स्ट्रेंथ अपने आपे पे आ जाए, तो उस लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट क्या कोई रोक पाएगा? अल्लाह के दीन की इकामत को कोई रोक पाएगा? इस्टेब्लिशमेंट रोक पाएगा? और यहाँ पर एक पर्सनल, ये एक इज्तिमाई लेवल पे हो गया कि आपको अल्लाह ताला सक्सेस की तरफ इनविटेशन है, ये क्लियर कट इनविटेशन है कि लीडरशिप पकड़ो और अपना दीन इस्टेब्लिश करो. और यहीं पर अल्लाह ताला ने एक और हिंट की कि पर्सनल फ्रीडम को अल्लाह ताला ने यही इसी आयत में इम्पोर्टेंस दी. आई विल एक्सप्लेन कैसे. जब आप लीडरशिप पोजीशन में होते हैं और अल्लाह का दीन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, यानी एक ख़ास किस्म का सेटअप अब आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको हर शय से छुटकारा चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए. किस किस्म की शय से? ग्रुप साइकोलॉजी से आपको छुटकारा चाहिए. यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप्स. आपको किसी किस्म की इमेज फॉर्मेशन में बंधने से छुटकारा चाहिए. कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, कोई अपीयरेंस स्टैंडर्ड्स, कोई ड्रेस कोड्स. आपको छुटकारा चाहिए पर्टिकुलर क्लास का हिस्सा बनने से कि अगर सो एंड सो क्लास का हिस्सा होंगे तो ही हम खुश रहेंगे. आपको छुटकारा चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने की, अल्लाह की इबादत को प्रैक्टिस करने की. सच अ हाई लेवल ऑफ presence of existence, such a high level. This is what Allah wants us to be in. इस फ्रीडम की स्टेट में ही हम एक्चुअल हैप्पीनेस को रियलाइज कर सकते हैं. आप खुद इमेजिन करके देखिए कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इस तरह की आज़ादी यहाँ मौजूद हर शख्स को फराहम हो, तो पहली चीज़ तो वो अल्लाह के दीन को खुल के प्रैक्टिस कर सकता है बिना किसी बंदिश के. अपने ख्यालात को बड़ी आज़ादी से, बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है और अपने लिए वो कर सकता है जो वो चाहता है.
इस वक्त हम सब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, तो एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं। और क्योंकि एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, हम अपनी असल पोटेंशियल पे काम भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें फ्रीडम का मतलब ये समझाया गया है कि जो मेरे डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, जो मैं चाहती हूँ वो करूँ, तो मैं आज़ादी फील करूँगी। ऐसा नहीं है। डिजायर्स की फुलफिलमेंट आज़ादी नहीं है, वो तो ट्रैप है। फिर आप डिजायर्स के गुलाम हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि हर चीज से आज़ाद हो जाओ, तुमको मैंने लीडरशिप के लिए बनाया है। फिर अल्लाह ताला इंडिकेट कर रहे हैं फ्रीडम की तरफ, ताकि तुम अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करो, क्योंकि तुम तब असल खुशी के हकदार होगे और उस खुशी की स्टेट में होगे, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की स्टेट में होगे। और एक लीडर का एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की स्टेट में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान आपका खुला दुश्मन है। वो आपको आपकी लीडरशिप, आपकी इकामतुद्दीन, अता ज़का आसानी से प्रैक्टिस नहीं करने देगा। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का हकम बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक माँ लीडर होती है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो क्या आप एक घर को किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में देख पाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक टीचर अगर लीडरशिप पोजीशन में नहीं है, अपनी खुशी से जो वो पढ़ाना चाहता है, बच्चों को जो कन्वे करना चाहता है, अगर नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी अच्छे पोटेंशियल पर ग्रो कर पाएंगे, या अपनी पोटेंसी को रीच कर पाएंगे, अपने जो अल्लाह ताला ने उनको एक इनेट कैपेबिलिटीज दी उनको रियलाइज कर पाएंगे? एक आदमी के लिए घर में और बाहर अलग अलग अल्लाह ताला ने लीडरशिप पोजीशंस दी हैं। डू यू सी एनीबडी एनीवेयर परफॉर्मिंग? हमने तो नहीं समझा इसका मतलब, बट वेस्ट ने इसका मतलब समझ लिया है। इनफैक्ट आप यहाँ देखें कि स्क्रीन पर हजरत उमर बिन इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, उनका एक कोट है कि देयर इज नो इस्लाम विदाउट यूनिटी एंड नो यूनिटी विदाउट लीडरशिप एंड नो लीडरशिप विदाउट ओबीडियंस। कैसे खूबसूरत मोती में आपने इस एक पूरी कॉन्सेप्ट को पिरोया है, अगर आप इसको डीप मीनिंग में समझें। कैसे एक तार में पूरी उम्मत को बांध दिया और हर एक को अपनी अपनी जगह समझा दी कि क्या करना होगा कि दीन इस्टेब्लिश हो जाए। एज आई सेड, हमने तो नहीं समझा इस कॉन्सेप्ट को, इस खूबसूरती को, इस गिफ्ट को जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया, बट बेस्ट हैज अंडरस्टूड। लेट मी टेल यू, ये जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त तस्वीर दिख रही है, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन एफेक्टोम प्रोजेक्ट। 2016 में तकरीबन 23 कंट्रीज में, जो ऑब्वियसली ऑल यूरोपियन एंड अमेरिकन नेशंस मेजरली, और एक आधी मिडल ईस्ट कंट्रीज, मिडल ईस्ट भी नहीं है एक्चुअली, देर आर ऑल नॉन मुस्लिम नेशंस। 23 कंट्रीज हैं, दे केम टुगेदर टू रियलाइज अ प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड ह्यूमन अफेक्टोम प्रोजेक्ट। ये कनाडा की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूरोपोलिया, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया और 2019 में तकरीबन फर्स्ट फेज इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल हो गया। और उन्होंने एक स्टडी की, और स्टडी वाज बिटवीन फॉर एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन फीलिंग या इमोशंस जिसको आप कहते हैं, और फीलिंग्स, मूड, इमोशंस जो भी आप कहें, और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर पे। और आई विल नाउ जस्ट एक्सप्लेन व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आप सेंटर में एक ग्रीन सर्कल देख रहे हैं जिसमें पॉजिटिव इमोशंस लिखा हुआ है। नाउ दिस इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, द स्टेट ऑफ वेलबींग। ऊपर की तरफ लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कॉग्निटिव कंट्रोल लिखा हुआ है, नीचे सोशल रिलेशंस लिखा है। तो आप ये देख रहे हैं टू वे एरोज जा रहे हैं। अगर आप स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में हैं तो आप पॉजिटिव इमोशंस रेडिएट करते हैं, आप पॉजिटिव साइकोलॉजी में रहते हैं। या अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी में हैं तो आप हैप्पी रहते हैं। अगर आप हैप्पी हैं तो आप वेलबींग स्टेट में रहते हैं। और अगर आप वेलबींग की एक स्टेट में हैं तो आप अगेन पॉजिटिव साइकोलॉजी जनरेट करते हैं अपने अंदर। दिस इज ऑन द पर्सन। और अगेन देन आप आ जाएं सोशल रिलेशनशिप्स में। अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी के तहत हैं तो आपकी सोशल रिलेशनशिप्स क्लोज हों या डिस्टेंट हों, दे आर ऑल वेल मैनेज्ड एंड वेल मेंटेन्ड, एंड वाइस वर्सा कि अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटैक्ट रहती है।
फिर ऊपर आता है कोग्निटिव कंट्रोल। कॉग्निशन इज नॉलेज, नोइंग, जानना किसी को। आपने वो लफ्ज रिकॉग्नाइज तो सुना होगा, तो रिकॉग्नाइज इज एक्चुअली रिकॉग्नाइज। तो मैंने पहले कभी देखा था, अब मैं इसको पहचान रही हूँ कि हाँ मैंने पहले कभी देखा था। तो कॉग्निशन इज जानना, किसी चीज को समझ जाना। तो कॉग्निटिव कंट्रोल, किसी चीज की समझ पैदा होना। अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी में हैं तो आपकी चीजों की समझ बेहतर होती है। अब ऊपर एक ऑरेंज रेक्टेंगल है जिसमें हमने लिखा हुआ है एक्टिविटीज, स्ट्रेटजीज, इंटरवेंशंस दैट कल्टिवेट पॉजिटिव इमोशंस। अब आप देखें ये रेडिएट कर रहा है पूरी चार्ट में हर एक कंटेंट को, कंटेंट के हर एक कॉर्नर को ये रेडिएट कर रहा है। यानी कि आप एक्टिविटीज से, स्ट्रेटजीज से, इंटरवेंशन से पॉजिटिव इमोशंस जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप पॉजिटिव इमोशंस जनरेट कर सकते हैं तो आप खुश रह सकते हैं, आपकी वेलबींग की स्टेट होगी। जब आपकी वेलबींग की स्टेट होगी तो आप अपनी प्रेजेंट पोटेंशियल से कई गुना ज्यादा बेटर पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे। बेटर पोटेंशियल पे काम करेंगे तो कंट्री को, स्टेट को उसका फायदा मिलेगा। दिस इज व्हाट द वेस्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग। एंड हियर आई विल कोट the millions of examples of Ashaba Ikram when जब किसी जंग की हालत में है, किसी मुश्किल की हालत में है, किसी परसिक्यूशन की हालत में है, तो what they used to go and visit Nabi al-Islam। उनको देखना, उनको छूना, या उनसे सिर्फ बात कर देना, या उनसे सिर्फ किसी को एक जुमला पूछ लेना, तो वो अपनी पॉजिटिव साइकोलॉजी रिस्टोर करके वापस उस परसिक्यूशन की, उस जंग की हालत में, उस मुश्किल की हालत में आते थे और फिर लड़ते थे। This is what the gift of Nabi Islam is to us. This is emotional intelligence. He radiated, one single man, he radiated emotional intelligence to an entire nation during his lifetime and even after that. I will repeat another hadith of Nabi Islam कि तुमसे बाद आने वाली जो मेरी उम्मत होगी, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझे सुना नहीं, मुझसे बात नहीं की, वो भी मुझ पे ईमान लाएंगे, मेरे अहकामात, मेरे बताए अहकामात को मानेंगे, एंड दे विल बी हायर इन रैंक्स। बिकॉज जो हमारे असहाबा इकराम थे, ऑफ कोर्स दे हैड द पॉजिटिव्स ऑफ हैविंग नबी इस्लाम इन पर्सन, इन फ्लैश एंड ब्लड अमंग देम, बट उनके पास अलूम नहीं थे। ज़ाहिरी तौर पे वी डोंट हैव नबी इस्लाम विद अस, बट हमारे पास अलूम है, वी कैन स्टिल डिस्कवर हिज पर्सनैलिटी, ही इज स्टिल विद अस। The West is doing this, we are not doing it because we are unaware of it. और आप देखिए नीचे दो arrows हैं, long arrows across the slide which says development across lifespan, environments and contexts across lifespan। तो आप देखिए कि पूरी जिंदगी इस positive psychology से कैसे affect होती है। And I just quoted Ashaba Ikram for this reason। अगर आप में से वो लोग जो स्टडी को रेफर करना चाहें, एल्सवेयर एक बहुत मशहूर और मारूफ यूरोपियन साइंस जर्नल है। इसमें न्यूरो साइंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस एंड अफेक्ट इम्प्लीकेशंस फॉर कल्टिवेटिंग हैप्पीनेस एंड वेलबींग नाम से एक पीयर रिव्यू छपा है, जिसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी का बाकायदा सिलसिलेवार एक डिस्क्रिप्शन है। और इसमें 55 पेज रिसर्च पेपर, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, द प्रोजेक्ट हैज नॉट गॉन डाउन, इट इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म। इस बार यूएस इसको कर रहा है along in collaboration with a lot of European nations। और अगर आप उसको स्टडी करेंगे और इस पूरी प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो उसके मुताबिक द क्रक्स इज हार्डवेयर दिया अल्लाह ताला ने, गाइडेंस भी दी और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया ताकि हम खुश रहें और अपने बेस्ट वर्जन में रहें। But we are unaware. That is the reason we need this class. You and me, we need this class. You and me, we need to go back and study our own Prophet. Salatu wassalam. Now we go into the philosophy of this course. This particular session is particularly about philosophy of emotional intelligence. I've just touched upon the first part of it. मैं सिलसिला बांधना चाह रही थी कि what is the utilitarian aspect अगर नहीं है किसी भी चीज़ का तो हम अपना वक्त उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। So I brought up that in the very first place। अब हम इसकी मैं आपको इसकी फिलोसफी समझाऊंगी। पर्टिकुलरली सेशन में फिलोसफी इज द अप्रोच। अगर आपके पास किसी चीज़ की फिलोसफी नहीं है, यानी उसकी एक सोच नहीं है, उसकी एक अप्रोच नहीं है किसी भी काम को करने की। फॉर इंस्टेंस मैं इस्लाम में हूँ तो मैं इस्लाम में क्यों,
I should, after a certain age, I should be asking this to myself, not because my parents were Muslims. So अगर मेरे पास as an individual इसकी सोच नहीं है, तो I am just like any other animal. So each one of you needs to have your own philosophy of studying this course, and how then only you'll be able to develop a strategy. आप सबकी जो potential होगी बड़ी अलग अलग areas में होगी. मैं बहुत सारे लोगों को तो personally जानती भी नहीं हूँ, तो but to discover your own potential, you need to discover yourself, your philosophy. That is why you are there in this course today. हम सबसे पहले philosophy पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा software पढ़ेंगे, then we'll jump to the hardware. Okay. So we just talked about happiness. A quick definition कर लेते हैं. Philosophy of happiness is the study of nature, existence, and attainment of happiness. Modern philosophers consider happiness to be a state of mind or life that goes well for the person living it. They often draw on research from psychology to develop their theories of happiness. आजकल, as I said, psychology is like ऐसे हो रहा है ना कि बड़ा trendy चीज है. एक चीज याद रखिएगा कि इट्स नॉट बैड टू गो थ्रू एनीथिंग और टू डिस्कवर एनीथिंग. कुछ भी जो भी हो रहा है, जिसका भी ट्रेंड है, जिसका भी हैशटैग चल रहा है, उसको बेशक जाने, बट डोंट बी गाइडेड इट बाय डोंट गेट गाइडेड बाय इट ऑन अ सिंगलटन बेसिस. सिर्फ वही वही है, क्वेश्चन जरूर कीजिए उसको, क्योंकि आपकी फिलोसफी, एज अ मुस्लिम, मेरी फिलोसफी शुड बी गाइडेड फ्रॉम द कुरान एंड नोवेयर एल्स. So I should always go back to whatever I learn, whatever I study, whatever I research, I should always go back to Quran and cross check. ठीक जा रहे हैं अभी तक, ठीक जा रहे हैं, सही हो रहा है, सही समझ आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई कोई डिविएशन आ रहा है, कोई रास्ते में डाइवर्जन है, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं होगा. So go through the content, but with caution. So we come to the philosophical approaches. अब आप देख रहे हैं मैंने इसको 3 क्लासिफिकेशंस में बांटा हुआ है. ग्रीको रोमन, क्रिश्चियन, जिसको मैं मॉडर्न कह रही हूँ. I'll tell you why. And then we have the Islamic philosophers. ग्रीको रोमन को हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इससे पहले की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं है. हो सकता है इसके पहले आदम अलैहिस्सलाम की औलादें रही हों, जिनकी फिलॉसफी थी, रही होगी, अल्लाह ताला ने बताया ही होगा, बट दैट हैज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड. वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स ऑफ दैट. और इफ दे आर वेरी अनस्क्रूपलस रिकॉर्ड्स, माने वो वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा किताबों में रेफर नहीं किए जाते हैं. तो मोटा मोटी हम ग्रीको रोमन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सुकरात, सोक्रेटिस, फादर ऑफ फिलोसफी कहलाते हैं. अच्छा, एनीबडी हु इज interested in philosophy, just for knowledge sake, I'll decide the direction of this discourse accordingly. सिर्फ hands raise कर दीजिए. Okay, so then I should be expecting, I have some 5-6 people, 7, 8, माशाल्लाह काफी लोग हैं. तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं फिलोसफी में, लेट मी सी इफ आई कैन क्रॉस क्वेश्चन यू. चलें फिर कंटिन्यू करते हैं. ग्रीको रोमन, सो वी हैव सोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु और एपिक्यूरस. ये कुछ नामचीन लोग हैं. और मोटा मोटी मैं अगर बताऊं तो इनका कहना ये है कि जो आपकी खुशी है, आपकी जो हैप्पीनेस है, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है. इस पूरे एरा की सम अप कर दिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस रीड कर दूंगी. प्लेटो कहते हैं कि आपकी खुशी डिपेंड्स ऑन सेल्फ, इज एन आउटकम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. फिर एरिस्टोटल कहते हैं द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस and मतलब happiness is the ultimate goal of human existence and it is achieved through virtue, यानी morality. यानी इस दौर में morality exist करती थी, morality की एक साख थी, morality का एक वजूद था, और इंसान अपने अंदर झांकना, मतलब तज़किया नफ्स करना बेसिकली, उसमें बिलीव करते थे. और एपिक्यूरस, बस थोड़ा सा यहाँ इनका डाइवर्जन हुआ था, ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जा रहा है, माने इनकी बर्थ जो है या इनका टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस इसी सीक्वेंस में, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड एपिक्यूरस. और एपिक्यूरस कहते हैं कि हैप्पीनेस इज द एम वाज the aim of life is to attain tranquility and freedom from fear. और ascetic lifestyle, यानी
मोनास्टिसिज्म यानी शादी वगैरह नहीं करो, संन्यास को रेकमेंड करते हैं, नोबल फ्रेंडशिप होनी चाहिए और पॉलिटिक्स अवॉइड करो तो खुश रहोगे। एपिक्यूरस का ऐसा कहना है। इसके बाद भी रोमन स्कूल के काफी, इसलिए ग्रीक एंड रोमन लिखा कि रोमन स्कूल ऑफ सेक्सटेई था, उसके काफी फिलोसोफर्स थे, पाइथागोरस, सिनेक, स्टोइक। बस सब कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म और पॉलिटिक्स से दूर रहोगे तो खुश रहोगे, मतलब ये, क्योंकि ये उस दौर की तकलीफ थी, उनकी तकलीफ ही ये थी कि आप जानते हैं कि जहर दिया गया था, फांसी चढ़ाई गई थी, फिलोसफर्स को उस दौर में ऐसे ही ट्रीट किया जाता था, तो उनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स से दूर रहोगे, कंज्यूमरिज्म से दूर रहोगे तो आप खुश रहेंगे। अब आ जाते हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न में तो फादर ऑफ फिलोसफी हो गए सोक्रेटिस। मॉडर्न फिलोसफी में फादर ऑफ फिलोसफी हैं डिकार्टे, बड़ा मशहूर मारूफ नाम है। वी हैव कार्टेशियन फिलोसफी, वी हैव कार्टेशियन प्लेस। इस आदमी की फिलोसफी ने इस हद तक अफेक्ट किया कि कुछ इनका दखल मदाखलत इनकी साइंस में भी हो गई। अच्छा, इट इज़ ओनली नाउ कि जो अलूम हैं यानी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो इतने बाइफिकेट कर दिए गए हैं कि आपस में उनका कोई राब्ता समझ में नहीं आता। बट पहले पहले एज इन बिफोर द वर्ल्ड वॉर्स जो तरीका स्टडी था उसमें फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, मैथ्स और लॉजिक ये सब एक साथ पढ़ाए जाते थे। और अगर अर्ली मदरसा सिस्टम आप देखेंगे तो उसमें भी ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, बट इन उसका फैशन थोड़ा सा अलग था, डिजाइनिंग थोड़ी अलग थी, बट तो ह्यूमन माइंड की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान था। We'll keep coming back to intellect and human mind and intelligence because this is an emotional intelligence course. So keep making notes. आपको बहुत कम वक्त में बहुत सारा कन्वे करना है, प्लीज अपने नोट्स जरूर लेते रहिए। अच्छा, तो अब हम आते हैं डिकार्टे पे। डिकार्टे की फिलॉसफी ने ही मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को इंस्पायर किया है बेसिकली। डिकार्टे के अकॉर्डिंग एक्चुअली डिकार्टे की जो फिलॉसफी थी वो बाइफकेट, मतलब दो मुही थी, एज ए कि इंसानी जो जात है उसके दो हिस्से हैं, एक बॉडी और एक सोल। और सोल को ही वो साइके कहते थे। और वो ये मतलब उनका ये कहना था कि कोई खास काम नहीं है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। सोल जो था वो धीरे 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 करके आगे निकलते निकलते माइंड बन गया था। और माइंड को फिर उन्होंने कहा कि माइंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लॉजिक, रैशन, मतलब रैशनल जो है, लॉजिक जो है, आई एम फॉरगेटिंग द उर्दू वर्ड फॉर दिस, क्या कहते हैं, छोड़े, ओके, Mantik. You can use Mantik as mantak, yes, mantak. So he paid a lot of emphasis on mantak. और he went to the extent to say कि knowledge of self is superior to the knowledge of God. और उन्होंने यहाँ तक कहा कि रेवलेशन सेकेंडरी है और रैशन यानी मंतक, आपका लॉजिक, वो प्राइमरी है। और उनकी इस फिलॉसफी का लिटरल बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि those of you who are aware of the Mu'tazila movement, it was the rationalist movement in the Islamic history. और Islam has gone through a lot of stages. और जो डेवलपमेंट ऑफ उलूम की जो एक स्टेज थी जिसमें हमने दुनिया को एक्चुअली, जो आज साइंस की जो इल्म है या जो रिसर्च की जो इल्म है वो एक्चुअली कुरान से, सीरा से और इस्लाम से आई थी। बट जो द कर्स ऑफ नॉलेज विच अप्लाइज एवरीवेयर अप्लाइज हियर आल्सो, तो हमारे ही कुछ स्कॉलर्स डिविएट हो गए। और जो डिकार्टे की जो फिलॉसफी थी कि रैशनल जो है, जो मंतक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो इस हद तक इम्पोर्टेंट है कि रेवलेशन यानी कि जो वही है, यानी कि जो अहकाम खुदाबंदी है, वो इसके नीचे प्लेस किया गया है। तो उन्होंने उस हद तक चले गए और इंसान को सुपीरियर साइकोलॉजी में लाने के लिए उन्होंने इंसान की मंतक को ज्यादा वेटेज दे दिया। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि फिर वो अनदर, इट विल ओपन अनदर रेल्म और फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे। बस आप इतना इस वक्त याद रख लें। वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन।
सो अभी तक के अब हम वी आर गेटिंग नाउ वी आर एंटरिंग द सॉफ्टवेयर। ये हमने फिलॉसफी पढ़ी, अब हम सॉफ्टवेयर एंटर करने जा रहे हैं, यानी कि आपकी सोच किस तरह से काम करती है, कैसे काम करती है। अभी तक I'm going to just sum it up. We talked about leadership. A good leadership can lead to your state of happiness. Happiness का definition हमने दो eras के लिए कर दिया, the Greco-Roman era and the Christian, which is like the modern philosophy का जो root है उस era के लिए कर दिया. I have purposefully left John Locke and Spinoza, हम बाद में उसको cover करेंगे. तो मोटा मोटी ये कि हैप्पीनेस की जो एक डेफिनेशन आज हम लिए बैठे हैं वो इन फिलोसोफर्स की वजह से है। जो इस्लामिक फिलोसोफर्स या इस्लामिक थॉट बीच में कहीं गायब हो गए। I'll just give you a short hint here for those of you who are interested। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कुछ रिसर्च वापस जाके करेंगे। जिसको यूरोप डार्क एजेस कहता है उसको जा करके एक बार डिस्कवर जरूर कीजिएगा। उस डार्क एजेस में इस्लामिक हिस्ट्री मतलब डेडलाइन जरा स्टडी कीजिएगा कि जो डार्क एजेस का जो दौर यूरोप कवर कर रहा है उसमें इस्लामिक जो सिस्टम था या इस्लामिक जो एम्पायर्स थे वो उस वक्त कितने, कौन सा एम्पायर या कितने एम्पायर्स उस वक्त उस पूरी डार्क एजेस के दौर में कोएग्जिस्टेंट थे। जस्ट कंपेयर द टाइमलाइंस। सो we'll come back. Concept of happiness in the modern world is right enlisted here, जो आज का जो concept है। I will not go into the different isms. I will just tell you one more thing over here कि मॉडर्निज्म में एक बड़ा रोल इनका है। मार्क्सिज्म के जो फाउंडर थे, सॉरी कम्युनिज्म के जो फाउंडर थे, और उनका कहना ये था कि चर्च और पोप और क्लर्जी यानी जो प्रीस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होती थी उन्होंने बिल्कुल भी जो कॉमन मैन है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसकी हालत पे ध्यान नहीं दिया, और इससे सोसाइटी में एक डिवाइड पैदा हुआ जिसकी वजह से कॉमन मैन के अंदर एक रिवोल्ट पैदा हुआ। वो उस रिवोल्ट का ही नतीजा थे जो डिफरेंट रेवोल्यूशंस हुए हैं, और उसके बाद कॉलोनियलिज्म आया, और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म आया। और चर्च के लिए क्योंकि क्लर्जी से नफरत थी, पोप से नफरत थी, तो उनके सिस्टम यानी उनके दीन से भी नफरत हो गई, और उस नफरत का नतीजा ये निकला कि फिलॉसफी ने एक डिफरेंट टर्न ले लिया, और उसने अल्लाह को और अल्लाह के अहकामात को दरकिनार रख के उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रिलीजन है वो एक चीज है और जो इंटेलेक्ट है वो दूसरी चीज है, और हम दुनिया में इंटेलेक्ट से काम करेंगे। तो वो जो क्लियर डिवाइड जो आज आप देख रहे हो उसी का नतीजा है कि वो आगे बढ़ते पनपते यहाँ तक आया कि अगर खुश रहना है तो आपने मटेरियलिज्म और कैपिटलिज्म का सहारा लेना है। मटेरियलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, इट सेज इट्स अ सोशल एंड फिलोसॉफिकल बिलीफ सिस्टम। देखें, मटेरियलिज्म इज अ बिलीफ सिस्टम एंड इट क्लियरली सेज, आप ये डेफिनेशन सर्च कर लीजिएगा, इट्स अ फिलोसॉफिकल बिलीफ सिस्टम, यानी ये आपकी सोच का तरीका है विच एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल पोजेशन। गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, अच्छी शादी कर लो, बड़े बड़े घर की बहू बन जाओ, अच्छे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड और IIT में बच्चों को पढ़ा लो, तो क्या, और फिर एक लाइफ आपकी क्या होगी, कंफर्टेबल हो जाएगी। जिसको हमने शॉर्ट में कह दिया, जो हमें नबी इस्लाम ने पहले ही प्रेरित करके दे दिया कि वाहन आएगा, वाहन बर्बाद करेगा मेरी उम्मत को, एक्स्ट्रावैगेंस, फेम, शो ऑफ। और कैपिटलिज्म क्या हुआ, कैपिटलिज्म एक लार्जर लेवल पर जाकर के सेट हो गया है। ये एक रूट फिलोसफी का एक ही हिस्सा, वो एक जो अवाम में एक जो कड़वाहट थी क्लर्जी के प्रति, तो क्लर्जी के प्रति कड़वाहट थी, तो क्लर्जी का सिस्टम से भी नफरत हो गई। ये नहीं सोचा कि वो क्लर्जी का सिस्टम नहीं है ना, वो तो अल्लाह का सिस्टम है। वो क्लर्जी की हुकूमत या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं था। ओके, सो कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप, जिसमें आप ये देखते हैं कि जो 5% अवाम लोग होते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका 95% पर रिसोर्सेज पर कब्जा है। तो ये तो आप जिस सिचुएशन में थे उससे भी बदतर सिचुएशन में चले गए इन इजम्स को एक्सेप्ट करके। दिस इज द रियलिटी। How many of us have thought about it कि जिससे रिवोल्ट करके आगे निकले थे कि आप इस सिस्टम को बदलेंगे, कुछ चेंज करेंगे, कुछ नया लाएंगे। आप क्या लाए, आप यही लेके आए। जो आपकी सिस्टम थे उससे भी
उससे भी बदतर सिस्टम। ये होता है नतीजा, अब इंसान अल्लाह की अहकाम, उसके दीन, उसके हक, उसकी ओबीडियंस से दूर जाता है। इस पे व्हेन आई वाज रिसर्चिंग दिस, मी एंड माय फ्रेंड वी केम अक्रॉस, मतलब व्हाट अ टाइमली डिस्कवरी दिस वाज, इनका डॉक्टर अल्लामा इकबाल का, व्हाट दिस इज, आई थिंक इब्लीस की मजलिस शूरा, एंड आई विल जस्ट रीड आउट द कपलेट्स फॉर यू। मैंने तो इब्लीस अपने जो उसके जो काउंसलर्स हैं उसके, वो उसने अपनी शूरा बनाई है और अपने काउंसलर्स के बीच में अपने कारनामों का बखान कर रहा है, और बाकायदा ये दिस इज अ डायलॉग, आपको वक्त मिले तो आप प्लीज पढ़िएगा। मैंने दिखलाया फिरंगी को मलूकियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिद व दैर व कलीसा का फसूं, मैंने नदारों को सिखलाया सबर सबक तकदीर का, मैंने मुनीम को दिया सरमायादारी का जुनून। I infused into the wealthy the craze for capitalism. So this is the modern form of happiness that we all directly, indirectly are trapped into. चलें तो फिर समझें कि रियल हैप्पीनेस है क्या। तो हैप्पीनेस तो जरूरी है, नहीं तो पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएंगे। अल्लाह क्या कहते हैं हैप्पीनेस के लिए? अल्लाह कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसनता वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहते हैं दुनिया की भी हसना मिले मेरे बंदे तुझे, आखिरत की भी मिले, तुझे हेल्थ मिले, सेफ्टी मिले, piety in children and wives, beneficial actions, help against enemies, sufficiency in यानी बरका in lawful livelihood and beneficial knowledge, और आखिरत की टोटलिटेरियन हैप्पीनेस तुझे मिले। अल्लाह की हसना ये है, अल्लाह हमें इस तरह से देना चाहते हैं। Let's discover this even a little more. What the Quran says about happiness. अल्लाह के जो अल्फाज हैं, जब वो इंसान के लिए खुशी की इंडिकेटर्स देना चाह रहे हैं, द वर्ड्स आर रदीयतन कंटेंटमेंट, मरदीयतन रदीयतन रिदा कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, फराह यानी रिजॉइस, फेस रिजॉइस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, हसना अच्छाई, किसी किस्म की अच्छाई, सईद जब आप खुश होते हैं, सकीना जिस ट्रैंक्विलिटी, वी विल डिस्कस सकीना इन डिटेल, अभी आने वाला है। देन फलाह जो सक्सेस, नजा सैल्वेशन, फाउज विक्ट्री। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा, because he knows your software, he knows your hardware, he knows, he is your designer, he knows this will not give you happiness. These और यहाँ पर अगर हम, इसीलिए मैंने अभी पीछे जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको, उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस नहीं हमने वहाँ डिस्कस की थी, बिकॉज इट इज़ राइट हियर इन लिस्टेड हियर। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट इस्लामिक अप्रोच ऑफ हैप्पीनेस इज अ मिक्स ऑफ योर नॉलेज ऑफ द बॉडी, knowledge of your soul, knowledge of God, your relationship with God, and your spiritual state. Nowhere it excludes your spiritual state. Your spiritual state is innate to your state of happiness. Without your spiritual state, you cannot be happy. We will discuss this in much details now. Go back to this. So let's dive deep into the software. The most important point to mention here is that the current revolution of psychology that has taken over the world from all sides and is definitely influencing Muslims as well as is the majoritarian concept is based on experimental psychology, which is subject to change with upsurfacing of any new discoveries या findings. मैं बार बार कह रही हूँ कि जो साइकोलॉजी की नॉलेज अभी हम ले रहे हैं दुनिया से, बहुत सारी सोर्सेस से आ रही है, वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे बेस्ड है, इसमें बाकायदा स्टडी है। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थोड़ी ऐसे है कि वक्त के साथ बदलती है। पिछले 30 साल में साइकोलॉजी सडनली ऊपर आई है एज अ साइंस। तो इसके बड़े शार्प
और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जो एक्सपेरिमेंटेशन इस वक्त हो रही है, कुछ वक्त के अंदर जैसे कि टूल्स हमारे बदलेंगे, हमारी और समझ बदलेगी, न्यूरोसाइंस में और तरक्की होगी, तो जो इसके रिजल्ट्स हैं वो फिर बदल जाएं और फिर आपकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। इसलिए वी नीड टू होल्ड टू कुरान एंड सुन्ना। बहुत टाइटली हमें कुरान और सुन्ना को पकड़ना है, ताकि हम इल्म तो लें, समझें भी चीज़ों को, पर हम रियलिटी से जो हमारा टच है, जो हम नई चीज़ों को सीखने में जो हम एक्साइटमेंट जो हमें हो रही है, उसके चक्कर में हम जो जो अल्लाह का दिया हुआ हमें एक गिफ्ट है कुरान और सुन्ना, उसको हम ना छोड़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो साइकोलॉजी की रिसर्च से आप सीखोगे, जितना भी आप सीख रहे हो, उसमें जो वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो आपकी है, इंसान की है, इट इज़ जस्ट नॉट फॉर मुस्लिम्स, इट इज़ फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन सोल। जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है इंसान की, वो उसके जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर कोई बात नहीं करती है। और जो रूहानी पार्ट है हमारा, जो अल्लाह ताला हमें खोल खोल के बार बार बता रहे हैं, अभी हम बस इस स्लाइड के बाद, इसके बाद हम जस्ट उसी को डिस्कवर करने जा रहे हैं, वो पार्ट वो नहीं बताती है। सो इट और व्हाट हैपेंस इज यू एंड अप लूजिंग द ट्रैक ऑफ जो भी आपने सीखा था, आप एकदम कंफ्यूज होकर के रह जाते हो। इसलिए इस रास्ते पर बहुत आपने फूक फूक के चलना है, बहुत बहुत आराम से जाना है, चीज़ों को बहुत आराम से समझना है। और फिर मैं कह रही हूँ, अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है कुरान और सुन्ना की लाइट में, क्योंकि ये आपकी और ज़िंदगी का मैटर है, या आपकी आखिरत को डिफाइन कर देगा। आपकी एक बार अगर साइकोलॉजी या आपकी फिलॉसफी सेट हो गई, ट्रस्ट मी, जब तक कहीं ठोकर नहीं खाएंगे ये नहीं पता चलेगा कि ये गलत थी। इसलिए कीप वेरी टाइट ट्रैक ऑफ योर कुरान एंड वेरी टाइट ट्रैक ऑफ सीरा एंड सुन्ना। चलें, ओके। फॉर नाउ जो कंटेंट है स्क्रीन पे, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ऊपर जो 3 अल्फाज लिखे हैं, दिल, अक्ल और नफ्स, इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीबडी? लाइक, आर यू गाइस अवेयर ऑफ दीज टर्म्स? आप इनसे वाकिफ हैं, इन अल्फाज से? जी बिल्कुल, कौन वाकिफ नहीं होगा। तो मुझे बताएंगे कि दिल क्या शय है? दिल दिल है, दिल क्या? कुछ जो आपके दिमाग में अल्फाज आ रहे हैं, प्लीज बताएं, कोई भी, एनीबडी। इमोशन से रिलेट फील होता है, फील, एहसास फील, होता है दिल चले में। चले चले, फील एक वर्ड हो गया, फील। कोई और? अक्ल, नफ्स? प्लस से सोचा जाता है। अक्ल से सोचा जाता है। नफ्स क्या शय है? नफ्स चले एआई से पूछ अक्ल लेती हूँ मैं, एआई क्या कह रहा है। जी जी, somebody। अक्ल जी, अक्ल डिजायर, जो है डिजायर क्या शय है? नफ्स इंक्लिनेशंस। नफ्स से आती है। नफ्स इंक्लिनेशंस है। एक कोई ब्रदर बोले थे। अक्ल जो है वो कैलकुलेटिव होती है ओके, और प्योरली मतलब रैशनल और फ़ायदा और नुकसान के बेसिस पर होती है वेरी और नाइस। हाँ, में इमोशंस नहीं होते जो कि दिल में होते हैं। इमोशंस दिल में होते हैं। ओके, सो इट इज़ मतलब दैट इज़ नॉट प्योरली कैलकुलेटिव एंड नफ्स इज़ मतलब एनिमलिस्टिक प्योर सर्वाइव मतलब डिज़ायर्स और अच्छा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये सब। ओके। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर, चले आज मैं नहीं कहती हूँ, अच्छा चले ऐसे ले लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल कोट, अल्लाह ताला सेज कि इनके दिल तो हैं लेकिन ये सोचते नहीं है। 1 सेकेंडली, सूर्य बकरा में अल्लाह कहते हैं इनके दिलों में बीमारी है। तो अगर अल्लाह कह रहे हैं कि इनके दिलों में बीमारी है, सो लाइक इज ही एक्चुअली टेलिंग दिल में बीमारी है, या फिर अक्ल में बीमारी है, या नफ्स में बीमारी है? बीमारी कहाँ है? मेरी प्रॉब्लम कहाँ है? अल्लाह ने मुझे दिल कहा कि दिल में बीमारी है। समझ नफ्स में, में सोच समझ समझ में में, नफ्स में सोचना आ मतलब रही है। अल्लाह
कोई कह रहा है नफ्स में बीमारी है, कोई कह रहा है नफ्स में, नफ्स में बीमारी है। दिल में दिल में नहीं, ही है दिल तो में अल्लाह नहीं है, क्योंकि हम जिस आम भाषा में दिल को कहते हैं वो सिर्फ इमोशनल उसका वो होता है, सेंटर है। और यस यस उसको हम नहीं समझते कि दिल से हम सोचते भी हैं, जो कि शायद साइंस अभी नहीं दिल वो से कहता। तो जो करंट सिचुएशन जो चल रही होती है इंसान उसी को अच्छा समझ लेता है, फिर अक्ल से हम देखते हैं कि हमारे साथ सही हुआ कि क्या हुआ, क्या चीज सही है, और फिर उसका फाइनल जजमेंट अपनी नफ्स पे आता है कि ये जो हमने इस चीज को मतलब ये जायज भी था कि नहीं था, वो अक्ल ये उसका शायद शायद यानी ये आम ओके अंडरस्टैंडिंग है कि हम दिल से सिर्फ इमोशन के बेसिस पर वो होते हैं, ड्राइव होते हैं, और दिल से जो सोचने समझने का जो रैशनल है, अगर सही वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, तो वो दिल का डिपार्टमेंट नहीं है, ये अभी तक हम सोचते हैं। तो अल्लाह ने हमें ये कह रहा है कि मतलब वी एक्चुअली थिंक फ्रॉम द हार्ट एंड नॉट जस्ट ब्रेन। So why is Allah saying कि we are thinking from the heart if He has given aql? Okay, we'll come back to this. देखें ये स्लाइड देखें, इसमें देखिए कुरानिक टर्म्स हैं, ये टाइम्स ऑफ occurrences in the text and usual translations या interpretations. सदर जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं चेस्ट, जिसके अंदर आप सीना 44 टाइम्स, कल्ब जिस विच इज रेफरेंस टू द हार्ट 132 टाइम्स, फुआद ये भी हार्ट के लिए यूज होता है बट 16 टाइम्स, बहुत कम यूज हुआ है। और फिर नफ्स इज यूज 295 टाइम्स in the form of self, soul, mind, heart, person। और ये नीचे रिसर्च पेपर है। और नबी इस्लाम की हदीस है, beware in the body there is a piece of flesh, if it is sound the whole body is sound, if it is corrupt the whole body is corrupt, and hearken it is the heart। अल्लाह भी ये कह रहे हैं इनके दिल तो हैं लेकिन ये सोचते नहीं हैं। और तो सूरह बकरा में एक मिनट और सूरह बकरा में कह रहे हैं अल्लाह कह रहे हैं कि इनके दिलों में बीमारी है, जहाँ वो मुनाफिकीन का जिक्र है वहां पर। और now I'll again quote another hadith of Nabi Islam where he says कि तकवा, और चेस्ट की तरफ आपने इशारा किया, हाथ दिखाया और कहा तकवा दिल में है। तो एक तरफ तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दिल तो हैं लेकिन सोचते नहीं है, फिर कह रहे हैं बीमारी भी है। एक बार स्टेटस बताया, दूसरा की प्रॉब्लम बताई, और तीसरा हदीस में दो मैंने हदीस कोट की हैं, और दोनों में सॉल्यूशन बताया गया है। हाकन इट इज द हार्ट, अगर हार्ट करप्ट हो गया तो पूरी बॉडी करप्ट हो जाएगी। ये नबी इस्लाम के अल्फाज हैं। Oh, it is more So complicated than I yes, thought. so we are going to discover। इनका जो ओवरलैप है वो शायद वो मैं बताती हूँ आपको why is this overlap, because we have not, क्योंकि आपकी कोई भी साइकोलॉजी इस पर्सपेक्टिव से स्टडी नहीं कराती, तो मुसलमान परेशान ही रहेगा। तो अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि तुम जब कुरान से दूर जाओगे तुम्हें परेशानी का सामना होगा। नबी इस्लाम कह रहे हैं कि तुम दूर रहोगे दीन से, डिस्टेंस होगा तुम्हारा दीन से, तुम खुश रह ही नहीं सकते। तुम्हारी फिलॉसफी तो डिफाइन कर दी गई है, तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम क्यों वेस्ट के पास जा रहे हो? वेस्ट तो हमारी ट्रस्ट मी, मेरे पास आई हैव रिसर्च पेपर्स, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू, मैंने अभी जो इसमें स्टडी की है उसमें मैंने बहुत रिसर्च पेपर्स देखे हैं जहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज हैव नॉट पेड अटेंशन टू द स्टडी इन रिसर्च in Islamic sciences in Quran. There is a study, I'll quote that paper later in some other sessions, which says कि Quran जो approach of psychology as per Quran, इसके ऊपर कुल टोटल रिसर्च टिल डेट जब से कुरान का नजूल हुआ है सिर्फ 24% रिसर्च हुई है, और इस 24% में से 28% रिसर्च अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और एक आध दो और मुल्क हैं मुझे याद नहीं आ रहे हैं यूरोप के, कुल टोटल 6 मुल्क हैं। और वाहिद मुल्क जहां ये रिसर्च स्टार्ट हुई है, अंडरलाइन स्टार्ट हुई है, दैट इज ईरान। व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर यू गाइस डूइंग? अभी मैंने आपको सिर्फ एक चीज पूछी, आप में से कोई इस मजलिस में मौजूद एक शख्स नहीं है जो जहनी तौर पे किसी ना किसी जज्बाती कम से कम एक प्रॉब्लम से वाकिफ ना हो, और इस पशोपेश में ना हो कि मैं क्या करूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
क्लूलेस। ये है रीजन आपका इस सेशन में आने का, क्योंकि जो सवाल आपके दिल में कौंध रहे हैं ना, वो आपको किसी यूट्यूब के सेशन पे, किसी ट्विटर के सेशन पे, किसी पॉडकास्ट पे नहीं मिल रहे हैं, और ये सिर्फ आपको अपनी रिसर्च करने से ही मिलेंगे, मेरे यहाँ बता देने से भी नहीं मिलेंगे। ओके, विल गेट बैक टू आवर सेशन। दिल, अक्ल और नफ्स, मैंने 3 लिखे हैं। ये इन 3 में से अब हम ये डिस्कवर करने जा रहे हैं कि इन तीनों में से हमारी प्रॉब्लम का बायस क्या है, कोई एक, कोई 2 या तीनों। और मैंने जैसे कोट किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके दिल तो हैं लेकिन ये सोचते नहीं है, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके दिलों में बीमारी है। फिर हदीस में नबी इस्लाम कहते हैं कि तकवा तो दिल में होता है। सो द स्टेटस इज देयर, द प्रॉब्लम इज देयर एंड द सॉल्यूशन इज देयर। अब साइंस ने ये डिस्कवर किया हुआ है कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं, आपका यहाँ आना, प्लेट में आज घर में जो भी खाना बना था, तो आपने प्लेट में कितने आइटम लिए, कितना खाया, किस वक्त खाया, इस वक्त कहाँ बैठ के सेशन ले रहे हैं, कल की जो कोई भी प्रोग्राम है वो आपके दिमाग में चल रही है, कोई खास गाड़ी ली, कोई कोर्स चुना, कोई खास फैसला लिया। हर एक छोटा बड़ा डिसीजन इमोशनल फैसला है। वी विल डिस्कस दिस, वी विल एक्चुअली प्रूव दिस बाय साइंस। और जो हमारे गाइडिंग इमोशंस होते हैं, 2 मेजर गाइडिंग इमोशंस हैं हमारे, फियर एंड फैसिनेशन। आप में से वो लोग जो सर साहिल अदीम के स्टूडेंट्स हैं या उन्हें बहुत सुनते हैं, इस लाइन से वाकिफ होंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कवर व्हाट इट मींस। I've been a student for a while and trust me, जब तक मैंने खुद नहीं पढ़ा मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मेरे उस्ताद कह क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश से वाकिफ नहीं हूँ, पर इसका मतलब नहीं समझ आता था मुझे। अल्लाह का इंसान के लिए फरमान है कि तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। ये कुरान के अल्फाज हैं। अच्छा, नाउ मैं जहाँ कहीं भी अल्लाह को कोट कर रही हूँ, मेरे पास मफहूम है, प्लीज तो आयात आपने ढूंढनी है, आपने अल्फाज उनके रिसर्च करने। तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा या अल्लाह इसमें मेरी क्या गलती है। मैं अपने मसाइल अल्लाह से डिस्कस कर रही थी, मैं अल्लाह से कही थी या अल्लाह इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे साथ तो जुल्म हुआ है। और फिर मैंने सारी लंबी सी एक लिस्ट गिना दी, इसने किया, इसने किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये हुआ, ये हुआ। और जब आप वहीं का वहीं, तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। व्हाट डज दिस मीन? मैं कह रही हूँ कि अल्लाह मैंने नहीं किया, अल्लाह कह रहे नहीं, ये तो तेरी करनी है। और हमने कई बार पढ़ा भी है कि सारा खैर अल्लाह की तरफ से होता है, और जो कोई भी मेरे पर परेशानी आ रही है, कोई मेरे मुश्किलात पैदा हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा अपना हाथ है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। अच्छा, पिछली स्लाइड में हमने कहीं पर वहन पढ़ा था। ओके, सिर्फ अजरा को ध्यान है, बाकी किसी को नहीं है। ओके, जब मैंने इस टॉपिक को स्टडी किया तो आई केम अक्रॉस अ वेरी शॉकिंग रेवलेशन। मुझे लगा कि नहीं भाई, सिर्फ वहन नहीं है, और भी कुछ गहरा है। एंड यू माइट बी शॉक्ड, बट प्लीज पार्डन, मुझे माफ करें अगर मेरी बात बुरी लगे सुनने में, पर मुझे मेरी अपनी डिस्कवरी खुद के लिए तो यही है कि निफाक है, इसकी वजह निफाक है। हम दीन की बात करते हैं, पर मेरी जो एक्शन है वो तो फर्क है। मैं कॉन्स्टेंटली और कॉन्शियसली कुछ लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मैं उनको खुश करना चाहती हूँ, या मैं उनसे कोई फायदा उठाना चाह रही हूँ, या हो सकता है मैं अपनी ईगो की तस्कीन कर रही हूँ, या कुछ भी और, फैशनेबल दिखने के लिए, ट्रेंडी दिखने के लिए। और हम इस एक्सटेंड तक जाते हैं कि हम उनकी फिलॉसफी इंडोर्स कर लेते हैं। क्या इस रूम में मौजूद कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि मैंने कभी किसी की फिलॉसफी इंडोर्स नहीं की है? एनीबडी, एक कोई बंदा हाथ उठा दे जिसने कभी किसी की फिलॉसफी इंडोर्स नहीं की हो, सिर्फ अल्लाह की बात मानी हो। तो फिर तो ये निफाक हुआ ना। इफ यू अग्री, तो फिर तो ये निफाक है।
तुमने कहा कि हम ईमान लाए तो हम तुम्हें बिना टेस्ट किए छोड़ देंगे? नहीं मौला, तू तो रब है, और तेरे टेस्ट करने से ही तो मुझे अपनी हालत का पता चलेगा, तेरे टेस्ट में ही मुझे अंदाजा होगा। इस पूरी जो ये अभी जो मैंने आपको बताया कि मेरे सारे इमोशंस जो हैं, मेरे सारे डिसीजंस इमोशनल डिसीजंस होते हैं, और जो मेरी गाइडिंग इमोशन है वो या तो मेरा फियर है या मेरा फैसिनेशन है। इससे एक बात साफ हो गई कि मेरी फिलॉसफी का सेंटर मेरा दिल है, मेरी सोच का सेंटर मेरा दिल है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इनके दिल तो हैं लेकिन ये सोचते नहीं है। अच्छा, मेरी सोच कैसे पैदा हो रही है? या तो किसी डर से पैदा हो रही है, या अल्लाह तेरा डर है, या अल्लाह तेरे आगे रसवाई का डर है, या नबी इस्लाम की नाफरमानी का डर है, या फिर बाकी डरों से तो आप वाकिफ हैं, मैंने तो उनसे वाकिफ कराया जो हम जल्दी सोचते नहीं है, या फिर मेरी कोई रग़बत, मेरे कोई रुझान, मेरे पैशंस, मेरे इंटरेस्ट, अट्रैक्शंस, यानी मेरे फैसिनेशंस। ये फिलॉसफी ही मेरा रास्ता डिजाइन करेगी और इसमें मदद करेगी मेरी अक्ल। एक भाई ने मेरे अभी कहा कि मेरी अक्ल मेरे डिसीजंस को जस्टिफाई करती है। वो ना फलानी वो बहुत बुरी बुरी लड़की, बहुत बुरी लड़की, उसने ना मेरे साथ ऐसे किया, और ये बात मेरे अंदर डर था, फियर। मैं उसके मुंह पे नहीं जाके कह पाई, इसलिए मैं किसी तीसरे से उसकी ये बात करी थी, और मेरी अक्ल उसको जस्टिफाई कर रही थी कि हाँ यार, उसने तेरे साथ इतना गलत किया है, तुझे तुझे इतना डाउन फील कराया है, तुझे इतना नेगेटिव फील कराया है, शी सो टॉक्सिक। मेरी अक्ल ने तुरंत इसको जस्टिफाई कर दिया। व्हाट इज द फिलॉसफी? ये बहुत बुरी चीज है। I did not have the courage to walk up to her and tell her, see, what you did was wrong, don't do this again to anybody. मेरी सोच हो गई ना डिफाइन। मेरी अक्ल हमेशा मेरे लिए फैसलों को, मेरी सोच को जस्टिफाई करेगी, मेरी गलतियों को मिटिगेट करेगी, और मेरे लिए चीजें, मुझे ऐसा लगेगा चीजें आसान हो रही हैं। मैं इसी तरह जीती हूँ। मुझे तो और कुछ, मुझे कम से कम यार थोड़ा सा तो मुझे सुकून मिलना चाहिए। मेरे को मेरा भी हक है इतने सुकून पे, तो मेरा भी हक है यार, मैं कितना झेलूं। What a fascinating machinery. It works superbly. शाजिया बस मुझे 2 मिनट दें, let me finish this, then I will just please note down your question. बस 1 मिनट, नहीं तो I will lose this count. Both your fears and your fascinations are your motivators to do a certain task or to not do it. I think मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। Is it? Yes. Yes. 1 मिनट। Yes. शैतान को बात नहीं पसंद आई। Is it there now? Yes, mashallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Okay, so both my fears and fascinations are your motivators to do a certain task or not to do it. या तो आप अपने फियर की वजह से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप अपने फैसिनेशन की वजह से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? क्यों नहीं सोचते? तो बंदा कहता है यार अब क्या सोचना था? तो अल्लाह कहते हैं अरे तू किससे डर रहा है और क्यों डर रहा है, और ये तो देख ले कि तेरा डर सच्चा है कि नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों, इन लोगों से ऐसे ना डर जैसे मुझसे डरने का हक है। जब हम अंधी तकलीद करते हैं तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? एंड देन ही इंट्रोड्यूसेस अस, ऐसा तो नहीं है तागूत कर रहे हो या शिर्क कर रहे हो जब तुम तकलीद कर रहे हो, क्योंकि तुमने गौर व फिक्र तो की नहीं। तो अब हम ये जानते हैं, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट
हमारा जो दिल है वो हमारी फिलॉसफी का मरकज है, और हमारी अक्ल इसका व्हीकल है, ये जस्टिफाई करेगी। वी विल एक्चुअली न्यूरोकेमिकली स्टडी कि ये होता कैसे है, वी विल स्टडी दैट, हमारे पास बकायदा एविडेंस होगा। सो नाउ यू नो व्हाट दिल इज, नाउ यू नो व्हाट अक्ल इज, देन वी विल गो टू नफ्स। शाजिया, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी जी, जो जी। आपने ये सेंटेंस बोला ना कि जो डिसीजन लेते हैं तो उसके बेसिस पे अक्ल जो है उसको जस्टिफाई करती है है ना? तो कि मैंने सही किया या अच्छा करा कि नहीं किया, ठीक? हाँ हाँ, तो फिर वो गिल्ट क्यों होता है? वो फितरा, वो अब वी आर कमिंग टू दैट, नफ्स, वी आर कमिंग टू दैट, ओके फाइन। वी आर कमिंग टू दैट नाउ। मैंने तीसरा पार्ट अभी नहीं किया था। ये अब ये आपकी रूटीन प्रोसीजर। मम्मी से झगड़ा किया, तेज आवाज में बात की, जस्टिफाई हो गया। हाँ यार, उन्होंने कब मेरे से कितनी बुरी तरह से बात की थी, मैं थकी हुई आई थी, उन्होंने बात सुनी मेरी? नहीं सुनी उन्होंने मेरी बात। ये आपकी रूटीन प्रोसीजर है। जब नबी इस्लाम कहते हैं ना कि तकवा दिल में है, क्या है तकवा? तकवा है 90% प्रोहिबिशन, ये मत करो, इससे मत रुको, ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। तकवा क्या है? कुछ नहीं है, आपने खाली ओबीडियंस करनी है, अपनी नफ्स की नहीं, अपनी सोच की नहीं, अल्लाह की। ओके, सो यहाँ तक वी आर क्लियर। एनी क्वेश्चंस बिसाइड्स नफ्स वाला जो क्वेश्चन था उसको छोड़ के? एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और का भी हैंड रेज है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, प्लीज माइक खोलें, बोले। जी, फैसिनेशन का जो है, हमारी कोई फैसिनेशन है तो उसको तो हम उसका तो इलाज है सेल्फ कंट्रोल, है ना, सेल्फ रेस्ट्रेंट। लेकिन मतलब हमें कुछ करने जा रहे हैं तो उसको हम ना करें, रोक लें खुद को, तो सेल्फ कंट्रोल से वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फियर का क्या दवा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ EI, इमोशनल इंटेलिजेंस? भाई, यू विल हैव टू वेट फॉर 3 सेशंस, we will come down to, there's a hormone called cortisol which is the driver. Yeah. it is the expression of your fear. मेरा काम उसका fear ही है, मेजर एक्सप्रेशन उसका fear, stress related जितने इमोशंस हैं, एंजाइटी, कॉर्टिसोल उसका एक्सप्रेशन है। तो आपने पहले तो सोच में जाना है कि फियर, अल्लाह ने क्या कहा, मेरे अलावा किसी से डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? मेरे से डरने का हक है, किसी से मत डर। फिर उन्होंने आपको Fear बता to दिया be कि countered by bigger fear. you give an example. Unless until you give an example, I will not be able to tell. No, मतलब fear कैसा भी, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। जी, fear, you I'll tell you, I will give you an example. I love somebody, Yeah, I'm not married, I love somebody, I have a fear of losing that person. all right, Why do I fear that? Because I love that person. okay. And it is very natural. If you love somebody and you're not in a Sharia relationship with that person, you will have the fear of losing that person. But do you love him or her more than Allah Ta'ala? This will mitigate your fear. Okay, but let's take a more क्या ज़्यादा typical या मुश्किल example. लीजिए This is also related to self control. This is more related to self control. जी, self control is again related to your soch. No, For I think instance, it has more overlap with the I am fascination habitual. part. I'll tell you, I am fascination is again to your soch. Both are rooted. देखिए, दिल मंबा है आपकी फिलोसफी का, आपकी सोच का, और आपका फियर या फैसिनेशन आपकी सोच से ही निकल रहा है। आपने वहां नहीं सोचा कि मेरी फिलोसफी क्या है, आपने अपनी Okay, can I give फिलोसफी you a better example which would Tell me. represent fear better? आप किसी को मतलब आप वर्क प्लेस पर हैं, कॉलेज में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपको कोई काम दिया जा रहा है या फिर आपको कुछ कहना है, तो आप वो गलत काम या वो अथॉरिटी में आपसे बड़े हैं या जो भी है, किसी भी डर की वजह से आप वो चीज़ एग्री कर जाते हैं, या फिर आपको उस वक्त जो जवाब देना होगा, जो जवाब देना बनता था, वो आपने नहीं दिया, आप चुप कर गए, तो वो आपका एक्शन है। यहाँ पर तो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस हो रहा है, वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल का ऑपोजिट, मतलब आपको कुछ एक्शन करना है, वो आप नहीं कर रहे हैं फियर की वजह से। तो EI की कंटेक्स्ट में व्हाट इज द क्योर फॉर दैट?
It is too early to talk about that. As I Okay. said, you have to wait for Okay. session. आपको tools दूंगी. देखिए Okay, आप alright. जिससे बात कर रहे हैं उसने वो भी जो भी आपको ऑर्डर दिया है, सीनियर है, कॉलीग है, बॉस है, कोई भी है, उसने जो भी आपको ऑर्डर दिया है वो भी एक इमोशनल डिसीजन है उसका. वो या तो आपको सुपरसीड करना चाहता है, या आपको नीचा दिखाना चाहता है, या अपने बॉस को खुश करने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है. तभी उसने कोई ऐसा काम करने को कहा है जो आप करना नहीं चाहते या जो माकूल नहीं है. तो आप जब उसकी साइकोलॉजी को समझ लेंगे, आप अपने आप को समझ लेंगे, तब आपको रास्ता अपने आप मिलने लगेगा. दिस इज द टूल्स. ये हम अब काफी आगे के सेशंस हैं, उसमें हम ये सब चीजें स्टडी करेंगे. अब बिल्कुल Okay. बजा क्वेश्चन है आपका, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन द राइट वे. जस्ट भाई थोड़ा सा पेशेंस बस. जी इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह. एनीबडी एल्स अभी तक की कंटेंट में कोई क्वेश्चन? अदरवाइज यू कैन राइट इट एंड वील आस्क लेटर. चलिए अब 10:50 हो गया. आई नीड टू हैव एन ओपिनियन, अ पॉपुलर पोल. देखिए मैं थोड़ी डिसिप्लिन इंसान हूँ इस मामले में कि 10:30 की सेशन थी, अब हम 20 मिनट आगे चल रहे हैं और अभी कंटेंट बाकी है स्लाइड में. जैसे कि आप देख रहे हो, नफ्स की डिस्कशन एक बार स्टार्ट होगी तो ये 20 मिनट से पहले खत्म नहीं होगी. और उसके बाद देन वी हैव इंटेलेक्ट. So do we drop the session here or we complete this session, this content? क्योंकि अभी काफी इसमें है मटेरियल. मुझे बोल चाहिए, बताएं. ड्रॉप द सेशन. ठीक है. तो अगला सेशन हम नफ्स से स्टार्ट करेंगे. नफ्स, आई जस्ट से कि नफ्स इज, आज के लिए सिर्फ इतना समझ लें, नफ्स इज पोजिशनिंग. और नफ्स की क्लासिफिकेशन वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने भी की है और कुरान में तो बड़ी डिटेल में नफ्स की साइकोलॉजी डिफाइन की गई है. अस्सलाम वालेकुम. आपने अभी जो कहा ना, मतलब कल्ब का डेफिनेशन एक्चुअली अभी अभी मतलब राउंड फिगर में हम क्या समझ सकते हैं? कल्ब का डेफिनेशन क्या है? कल तो भाई मैंने समझाया ही नहीं ना, तो मुझे अभी बाकी काफी मेंबर्स ने कहा कि ड्रॉप द सेशन. कुछ बस एक हार्ट के आध बारे में मिनट. बात कर रहे थे ना अभी आप, जो आपने पूरा अभी डिस्कशन तक किया. हम कल पे आए नहीं हैं, मैं उसको ओके रिलेट करूंगी. कल्ब ओके. इज मोर और लेस, it's the state of heart. अभी सॉफ्टवेयर पूरा नहीं स्पिरिचुअल हुआ है. हार्ट कह सकते हैं क्या इसको? स्पिरिचुअल हार्ट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. एक्चुअली स्पिरिचुअल हार्ट नहीं है. चलिए मैं नफ्स तो पूरा कर देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे. जस्ट हैंग ऑन विद मी फॉर अ स्मॉल पीरियड. हम नफ्स खत्म कर देंगे, फिर अगले सेशन हम इंटेलेक्ट से स्टार्ट करेंगे. इंसानी वजूद को ऐसे समझ लें, दो हिस्से हैं, हैवानी वजूद और रूहानी वजूद. तो अक्ले हैवानी इंटेलेक्ट है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. अक्ले हैवानी इंटेलेक्ट, ब्रेन, इंटेलेक्ट वो है. और अक्ले रूहानी जो है वो कल्ब है. रूह की जो अक्ल है, रूह जिससे फैसले करती है, वो कल्ब है. और कल्ब इज सेंट्रली प्लेस्ड. देखिए जैसे आपका हार्ट है कि हमेशा एक स्टेट ऑफ मोशन में रहता है. आप किसी भी ऑर्गन को देखें बॉडी के, तो थोड़े वक्त के लिए, ज्यादा वक्त के लिए वो शट डाउन या रेस्ट में जाता है. नॉट कंप्लीट शट डाउन बट रेस्ट में तो जाता है, कि डिसफंक्शनल होता है, बस उसमें बड़ी बहुत लाइट सी एक्टिविटी होती है. बट हार्ट वाहिद ऑर्गन है जिसमें बहुत कांस्टेंट और कंसिस्टेंट एक्टिविटी. हार्ट का एक सेकंड के लिए भी रुक जाना आपकी मौत का बायस होगा. तो जो हार्ट की प्लेसमेंट है, अल्लाह ताला ने कल्ब की वही प्लेसमेंट की है. और ये मटेरियल और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस के बीच में एक झूला झूलता रहता है, एक पेंडुलम की तरह. और इसको ऐसे समझें कि हार्ट, कल्ब की पोजीशन समझें कि वही जो होती है, वही जो डिवाइन रेवलेशन होता है, वो कल्ब पे रिसीव होता है. और कल्ब इज, बिकॉज इट इज अक्ल रूहानी, यानी रूह की का ये एक ड्राइवर है कि रूह तक, और रूह तक कंटेंट पहुंचाना और रूह का कंटेंट बाहर कम्युनिकेट करना, ये कल्ब से होता है. पर ये जो कल्ब सलीम होता है, मतलब जब आपकी नफ्स नफ्स मुतमइन्ना की स्टेट में होती है. और एक्चुअली जो वही होती थी वो रूह
रिसीव करती है। जो रसूल और नबियों की जो रूहें होती हैं, जो पाक और एकदम क्लीन रूहें होती हैं, उनकी रूहें ये वही रिसीव करती थी। इसीलिए जिन्नातों में नबियों का या रसूलों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव रूह ओवर देयर। दिस इज रूह। सो रूह इज वेरी क्लियर, रूह इज योर स्पिरिट। अच्छा, एक चीज और समझ लें, जब हम नफ्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं पिछली स्लाइड में देखिए, नफ्स का इस्तेमाल ये कुरान की डेफिनेशन है। इस नफ्स को सेल्फ के इस्तेमाल में, सोल के इस्तेमाल में, माइंड के इस्तेमाल में, पर्सन यानी शख्सियत के इस्तेमाल में लाया गया है। एंड पर्सन के इस्तेमाल में इट्स यूज्ड इन द फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्लीट पर्सनालिटी, शख्सियत। यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए भी अल्फाज नफ्स का इस्तेमाल किया कुरान करीम में 4 जगह, सूरह आल इमरान में और सूरह अनम में। अनाए कबीर, इनफाइनाइट ईगो, नफ्स का लफ्ज नफ्स का इस्तेमाल वहां हुआ है। और जहां बाकी दीगर जगह जहां पर नफ्स का इस्तेमाल हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज फॉर ह्यूमन बीइंग। कंपोजिट स्ट्रक्चर है। कंपोजिट का मतलब एक इसका मटेरियल हिस्सा है, एक इसका स्पिरिचुअल हिस्सा है। जो मटेरियल हिस्सा है उसके भी 2 हिस्से हैं, बॉडी और जान। मतलब जब हम ये कहते हैं ना कि बंदा मर गया, इसकी जान निकल रही है, दैट इज नॉट रूह निकल रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसके ऊपर रिसर्च है। वो रूह नहीं निकल रही है, वो उसकी जान निकल रही है। यानी जो उसकी जो मटेरियल हिस्सा है, उसके अंदर जो लाइफ अल्लाह ने दी थी, वो निकल रही थी, वो थी नफ्स। दैट इज नफ्स। अब इस नफ्स के 3 फॉर्म हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल ही यहाँ पर आगे कुरानिक पर्सपेक्टिव समझने से पहले हम सिगमंड फ्रॉइड को जरा समझ लें। सिगमंड फ्रॉइड इस मामले में उसकी क्लासिफिकेशन काफी करीब आई है टू द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ नफ्स। उसने नफ्स का यानी जो एनिमलिस्टिक सेल्फ है, उसने कहा कि उसके 3 स्टेजेस होते हैं, आइड, इड या लिबिडो। दूसरा उसने कहा ईगो। ईगो को वो कहता है कि कल्ब है। इड जो होती है वो नफ्स अम्मारा होती है, द लोअर एंड इंस्टिंक्टिव नफ्स जो होती है, एनिमल इंस्टिंक्ट वाली जो नफ्स होती है। और उसने कहा सुपर ईगो। सुपर ईगो को वो ये कहता है, उसने रूह के टर्म्स में सुपर ईगो को नहीं लिया, देखिए मैंने इसलिए क्रॉस किया। उसकी डेफिनेशन है व्हीकल ऑफ ट्रेडिशन है, माने जो हमारा समाज हमें डिजाइन करता है, जब हम बहुत ऊंचे आला तरीन मोरालिटीज पर होते हैं, वर्चूज पे होते हैं, तो वो हमारी सुपर ईगो होती है। यहाँ पर ये इज डिस्कार्डेड वर्जन। बाकी जो दोनों डिस्क्रिप्शंस हैं, तो जो लोअर इंस्टिंक्ट है, दैट नीड्स ग्रेटिफिकेशन, तस्कीन चाहिए उसको हलाल हराम की तमीज नहीं है, उसको भूख लगी उसको खाना चाहिए। उसको नहीं मतलब है कि जायज तरीके से आ रहा है, नाजायज तरीके से आ रहा है। अगर उसको सेक्सुअल डिजायर्स है, वहां जायज नाजायज की तमीज नहीं है। कपड़े चाहिए उसको, घर चाहिए, कुछ भी, मतलब जो भी लोअर सेल्फ है उसमें, जिसमें हलाल हराम की तमीज नहीं है, जो कि एनिमल्स में होता है। कुत्ते बिल्ली में भी उनको कोई मतलब नहीं होता है, कहीं पर भी जहां खाना पड़ा होगा साफ है नहीं है, पाक है ना पाक है, कुछ मतलब नहीं है। दिस इज नफ्स अम्मारा, विच इज फ्रॉइड की आइड या लिबिडो। फिर अब इसमें क्या हुआ भाई, दीन की डेफिनेशंस तो पढ़ ली, सुन भी ली, बड़े सारे खुतबे अटेंड किए, तो हराम इनकम तो कमा रहे हैं, पर मतलब आलीशान घर खड़ा हुआ है भाई हराम इनकम से, इतना सारा पैसा है, गाड़ियां हैं, बीवियां मेंटेन हो रही हैं, ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी ज़कात दे देते हैं, हलाल हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ब्लैक जो है ना हमारा, ये वाइट हो जाएगा। दिस इज गड़मड़, मिक्स्ड, लवामा। एंड द थर्ड एंड द प्योरेस्ट फॉर्म इज नफ्स मुतमइन्ना। इसका मंबा, इसका पर्सोनिफिकेशन प्रॉफिट इस्लाम। और मुतमइन्ना की आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट इज द परफेक्ट स्टेट ऑफ सुकून, जिसको कहते हैं ना इत्मीनान है, अमन है, जहनी या कल्बी सुकून है। आप खौफ से और ग्रीफ, दुख, एंजाइटी, इससे दूर है। जब आपको किसी चीज का फियर नहीं होता और कोई गम दुख आपके ऊपर असर नहीं करता, दैट इज मुतमइन्ना। एब्सोल्यूट लैक ऑफ फियर इज मुतमइन्ना। कल्ब इज द पेंडुलम बिटवीन अम्मारा एंड मुतमइन्ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हार्ट की प्लेसमेंट है ना, राइट इन द सेंटर, कि एक तरफ से गंदा खून आ रहा है, एक तरफ से साफ खून जाना है, वही हालत है कल्ब की। तो नफ्स की अगर हम डेफिनेशन, हमने दिल की डेफिनेशन दे दी, अक्ल की भी दे दी, अब हम नफ्स की डेफिनेशन दें तो इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग
एनिमलिस्टिक स्टेट में हो, बीच में लटके हुए हो, या तुमने हासिल कर ली वो डिग्री, वो जगह जहां तुम जाना चाहते थे, किस हालत में हो? या फिर अगर ब्लंटली अगर अल्फाज में कहूं तो जो तुम्हारी जात है वो कितनी बीमार है। बीमारी से मुराद यहाँ पर है डिस्टेंस फ्रॉम अल्लाह। तुम्हारी कल्ब, तुम्हारी जो स्टेट है नफ्स की, वो ये बता देगी कि डिस्टेंस फ्रॉम अल्लाह कितना है। और अगर आप स्टडी करोगे ना नफ्स को, तो आप देखोगे कि यहाँ मौजूद, इस कमरे में मौजूद हर इंसान ने नफ्स कहीं ना कहीं से उधार लिया हुआ है। हमारे पास अपना नफ्स भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से आ रहा है। हम लोगों की चाहतों को फॉलो कर रहे हैं, स्टेटस, खानदान, मनी, पैसा, इज्जत, चॉइस ऑफ स्पाउस, ऐसा हो वैसा हो। सो कोई ना कोई या तो फैसिनेशन है या फियर है। और अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी फियर्स खत्म कर दी हैं, तो क्या मैं मतलब लाइक एम आई इन द परफेक्ट स्टेट? नो, यू हैव टू फॉलो अल्लाह's दीन इन एंटायरिटी। और क्योंकि मुसलमान इस मैश में फंसा हुआ है, बुरी तरह से ट्रैप्ड है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। वी कम बैक टू इमोशनल इंटेलिजेंस। इतनी सारी फिलोसफीज में ट्रैप होकर के हम अपने आप को हमने मेंटल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर में मुब्तला कर रखा है, जबकि अल्लाह ताला ने हमको सारे टूल्स दे रखे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि किस चीज का शुक्रिया अदा करोगे, फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सो that's it for today. We have now we are left with intelligence and its definition. We'll go back to intelligence, then we will subclassify intelligence and go start with emotional intelligence. Jazakumullah khair. That's it for today. Any questions? जहाँ से स्टार्ट हुए थे वो क्वेश्चन आई हैव, जी जी। कि वही जो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि इनके दिल में बीमारियां हैं, तो वो कौन से, वो दिल के न्यूरॉन्स की बात हो रही है? कौन से दिल में बीमारी है? आपकी सोच में बीमारी है, आपकी फिलॉसफी में बीमारी है। ओके, जिस फिलॉसफी को हमने उस दिल से एक्सेप्ट किया। जी। राइट। ओके। और मैंने आपको बताया, लगातार बता रही हूँ, निफाक है। वी हैव टू फेसेस, एक अपने लिए, एक दुनिया के लिए। ऑल ऑफ अस हैव टू फेसेस। वी हैव एक्सेप्टेड दिस वे ऑफ लाइफ। अरे चलता है यार, जो मुझे अपने लिए पसंद है वो मैं जल्दी से सबको रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आई विल बी अ फूल। अगर मैं सबको रेकमेंड करने लग गई तो लोग सोचेंगे यार बेवकूफ है यार, बताती फिर रही, कौन पूछ रहा है इससे। मेरे दिल में निफाक है। जबकि अगर मैं अब छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं टीचर हूँ या मैं कोई ऐसे सेशन ले रही हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं नहीं सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। वॉट एवर आई एम सेइंग, प्रीचिंग, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। मेरी फिलॉसफी में बीमारी है, मेरी सोच में बीमारी है। मेरी सोच ठीक हो जाएगी, मेरी 50% बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं खुद को सही, दूसरों को गलत मान रही हूँ, तभी तो मैं गीबत करती हूँ, तभी तो मेरे झगड़े होते हैं, तभी तो मेरे अंदर एम्पैथी नहीं है। मेरे लिए अपना वक्त इंपॉर्टेंट है, दूसरे का नहीं है। अपनी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, दूसरे की नहीं है। मुझे दूसरे के कंधे पे चढ़ करके और अपना भला करना है। मेरी सोच में प्रॉब्लम है, 2000% मेरी सोच में प्रॉब्लम है। आई होप दैट आंसर्स यू। Yes, mashallah, and alhamdulillah, very nice session. Jazakallah khair तानु, jazakallah, may Allah reward, may Allah bless your evidence. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा था, जज़ाकल्लाह। Anybody else? Any questions? No. So over to you, my dear moderator, Asma. Jazakallah khairan kaseera. It was very nice session. And अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप वाइंड अप कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से पहले कुछ प्रिपेयर करके आए ना इनको।